in today's class, we'll discuss about deductions under section 24. So there are two types of deductions under section 24 in respect of income from house property. So there is section 24A, which is standard deduction, and under section 24B, interest on borrowed capital. So in case the owner has taken a loan from someone in order to construct his property, or in order to purchase his property, or in order to renovate his property. So in case the owner is taking a loan for that property, then whatever interest he is paying to the lender, that can be allowed as a deduction under section 24B. So if you look into this format, first GAV आप calculate करोगे. You already know how the process of calculating the GAV. Then you will subtract municipal taxes paid. Then this is NAV, net annual value. Then you deduct the deductions under section 24, जिसमें 24A is the standard deduction and 24B is your interest on borrowed capital. जब deduction कर दोगे, you will get a taxable house property income. Okay, so this is the format. So let's understand each deduction in detail now. So first is standard deduction. So standard deduction is 30% of the NAV is deductible irrespective of any expenditure incurred by the taxpayer. So this is a fixed 30% which you can deduct from your NAV irrespective of any expenditure which in reality is incurred by the taxpayer. So if I say in simple language, this deduction is allowed for various expenses incurred on repairs and maintenance of the house property. ठीक है, आपकी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप हाउस प्रॉपर्टी जब आप मेंटेन करते हो, चाहे भले ही आप वो लोन पे दो, चाहे वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करो, we have to incur lot of expenses, right? repairs होती है, मेंटेनेंस होती है हाउस प्रॉपर्टी की. इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि up to 30%, up to नहीं, exact 30% of NAV can be allowed as deduction. The actual expenses are always ignored. चाहे आपके actual expenses कम हो, चाहे आपके actual expenses on repairs and maintenance ज्यादा हो, हमेशा आपको fixed deduction मिलेगी at the rate of 30%. तो हमेशा अपने दिमाग में रखना है, हाउस प्रॉपर्टी जब भी कैलकुलेट करोगे, जो भी NAV अमाउंट होगा, उसमें से आप 24A सेक्शन के अंडर 30% उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर फिर टोटल टैक्सेबल इनकम निकालोगे हाउस प्रॉपर्टी की. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन. Mr. X has rent out his property at the rate of rupees 10,000 per month, whereas the expected rent is rupees 1 lakh per annum. The property is vacant for 2 months and is let out for the remaining 10 months. Expenses on repairs and maintenance is rupees 19,000 and rupees 10,000 is paid as fire insurance premium for this property. Calculate house property income assuming that municipal taxes are rupees 18,000, out of which rupees 5,000 are paid by the owner. So just take 2 minutes of your time and just analyze this question and try to find out the answer. I'm just giving you 2 minutes. Uske baad I'll show you the solution.
Ma'am, I'm unable to join. अब तो join हो आप बेटा. Anyone got the answer? We have to solve this question. I have just discussed about the standard deduction under section 24A, which is allowed from your net annual value. Okay. अभी जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगी देन यू कैन मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी दिस डिडक्शन. ठीक है. आप किसी ने मुझे आंसर दिया है 66,500 एंड 57,400. ठीक है. लेट्स सी. 66,500 इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहले क्या है एक्सपेक्टेड रेंट. सो एक्सपेक्टेड रेंट इज 1 लाख पर एनम. This is the scenario in which your house property is vacant for part of the year and for the remaining part of the year it is let out. So in this case we have to subtract the loss of vacancy from the expected rent. So loss of vacancy कितना है 2 months into 10,000 रेंट पे था राइट. 10,000 पर मंथ रेंट पे चढ़ा हुआ था पर 2 महीने का वेकेंट था. So 2 into 10,000, 20,000. Now we have calculated our reasonable rent which is 80,000. Actual rent क्या है for 10 months क्योंकि actual में वो सिर्फ 10 months पे ही rent out था. So 10 months into 10,000 per annum जो rent था आपका it is 1 lakh. Now you will take higher of these two figures. So higher is 1 lakh. So your GAV is 1 lakh. You will subtract municipal taxes paid. थे तो आपके 18,000 बट हमेशा हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड के बेसिस पे डिडक्ट करते हैं. सो इन दिस केस 5,000 आर पेड बाय द ओनर. अगर यहाँ पे टेनेंट होता तो हम लोग वो भी डिडक्ट नहीं करते. सो इन दिस केस 5,000 विल बी डिडक्टेड. नाउ योर NAV इज 95,000. 1 लाख माइनस 5,000 95,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहती है कि NAV जितना भी है 30% उसको डिडक्शन दे दो. So 30% of 95,000. Just calculate it. 95,000 into 30% is 28,500. So ये deduction आपने दे दी. Now this is your total taxable income from house property. So this यहाँ पे बेटा bracket आएगी आपकी 95,000 minus 28,500 is 66,500. Okay, so this is the answer. एक सेकंड इसको मैं ठीक ही कर देती हूँ. सो इट इज अंडर ब्रैकेट. मैं एक बार ही रिवाइज करा देती हूँ आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन. सो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है. It is allowed for various expenses incurred on repairs and maintenance of the house property. The actual expenses are always ignored and deduction is fixed at the rate of 30%. So whatever repairs and maintenance cost has been incurred by the owner of the house, these are always ignored. You just have to give 30% of the NAV amount as deduction. Okay. आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस ये देखना है NAV का अमाउंट है, इसका मतलब 30% आपको डिडक्शन देना है. ठीक है. तो इस केस में अगर आप देखोगे एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्चुअल में 19,000 है और 10,000 उसने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी के लिए. बट दीज ऑल आर ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड. ठीक है. हम लोग कभी भी इन पे इस स्टेटमेंट्स को हमेशा इग्नोर करेंगे और हम जो भी हमारा NAV है उस पे हम नेट 30% की डिडक्शन दे देंगे. ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पे 30% का डायरेक्ट डिडक्शन दिया है आपके NAV पे. आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज निल. ठीक है. कोई लोन नहीं लिया हुआ था तो ये कंसेप्ट हम बाद में करेंगे. सो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सो दिस इज योर टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम. सो एनी डाउट अंडर द स्टैंडर्ड डिडक्शन just let me know, otherwise I'll move. Any doubt?
Yes, बच्चे. If no expenses has been incurred, then also the deductions will be given. This is fixed. चाहे आपके actual ना हो. Manan, are you able to see the solution? This is the solution, बच्चे. ठीक है, तो should I move? Excuse No ma'am, I doubts? joined. Excuse ma'am, can you just give a brief? I joined a bit late. मतलब थोड़ा सा बता. So I am assuming there are no doubts. So this is next one, that is interest on borrowed capital under section 24B. So under section 24B of the Income Tax Act, it allows deduction of interest on home loan from the taxable income. Such loan should be taken for purchase or construction or repair or reconstruction or renovation of your house property. So जो भी आपके हाउस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, चाहे आपको परचेज करनी हो, चाहे कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, चाहे रिपेयर हो, चाहे रिनोवेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, इट विल ऑलवेज बी अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम. Such deduction is allowed on accrual basis and not on paid basis. हमेशा याद रखना, ये जो इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है, ये हमेशा आपका accrual basis है, not paid basis. तो अगर पे कम किया हुआ है और अक्रूवल ज्यादा है, तो आप हमेशा अक्रूवल पे ही डिडक्शन दोगे. ठीक है. So the interest payable for the year is allowed as deduction whether such interest is actually paid or not. ठीक है. So this is based on accrual concept. Deduction can be claimed for 2 or more housing loans. The deduction can also be claimed for 2 or more houses. ठीक है. So in case the person has more than one house, दो या दो से ज्यादा है उसके पास houses, तो सब पे उसको डिडक्शन मिलेगी. प्लस जो हाउसिंग लोन्स लिए हुए हैं, चाहे उसने एक घर बनाने के लिए एक से ज्यादा लोन्स लिए हुए हैं, तो उन सबको मिला के भी डिडक्शन मिलेगी. ऑल्दो देयर इज अ मैक्सिमम सीलिंग विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस सेशन, लेकिन ये डिडक्शन मिलेगी आपको. ठीक है. तो यू कैन क्लब द हाउसिंग लोन्स, यू कैन ऑल्सो क्लब द हाउसेज इन केस यू हैव मोर देन वन. For claiming deductions under this section, person must be the owner of the house property and also the loan should be in his name. ठीक है. तो ये खाली ओनर के केस में मिलती है, who is actually owning that property. ठीक है. और किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिलती है, जैसे हस्बैंड इज द ओनर और वाइफ नहीं है, तो वाइफ अगर लोन ले रही है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो सिर्फ हस्बैंड को ही मिलेगी जिसके नाम पे एक्चुअल में प्रॉपर्टी है. This is important. If any bribe, brokerage, commission or the like charges has been paid or the expenditure has been incurred on obtaining the loan, then such amount is not allowed as deduction. So कोई भी अगर आपको एक्सपेंडिचर लगता है, चाहे फेयर हो चाहे अनफेयर मीन से हो, which is just for obtaining the loan, ठीक है. सो वो जो सिर्फ लेने के लिए है लोन, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. जो आपका बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट है, खाली वो आपको डिडक्शन मिलेगी. ठीक है. Then the next is type of loans for which the deduction is allowed. So this deduction is allowed irrespective of the nature of the loan. ठीक है. चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो from any person or institution, but the loan should be used for the purchase, for the purpose of construction or purchase or repair or reconstruction of the house. गेटिंग माई पॉइंट. चाहे आप किसी से भी लोन लो, चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, बट किस लिए ले रहे हो लोन आपका, ये लोन आप या तो परचेज के लिए कर रहे हो, या कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो, या फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर्स या रेनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो. अगर करोगे तो पूरा इंटरेस्ट आपका डिडक्शन के रूप में अलाउड है. ठीक है.
if a person, instead of raising a loan from a third party, pays sale price to the seller in installments along with interest, then such interest is also allowable. इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लोन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, वो क्या कर रहा है, जिस सेलर से उसने लिया है ना, उस सेलर को ही वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है विद इंटरेस्ट. जैसे उसने फॉर एग्जांपल 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे उसको ही वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है, वो एक साथ पेमेंट नहीं कर रहा है किसी और से लोन लेकर. ठीक है, तो अगर इन केस वो उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहा है अलोंग विद इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, सो अभी तक हमने क्या रिवाइज किया है, हमने ये रिवाइज किया है कि जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे वो हाउस लोन हो चाहे वो पर्सनल लोन हो, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेज और रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन, वो हमेशा आपका अलाउड होता है फ्रॉम योर नेट एनुअल वैल्यू. आपके एनएवी से वो डिडक्शन अलाउड होती है. बट जो भी ब्रोकरेज या कोई भी इंटरमीडिएट आपका एक्सपेंडिचर होता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट लोन, चाहे आप ब्रोकरेज दो, चाहे आप ब्राइब दो, चाहे कमीशन दो, वो कुछ भी अलाउड नहीं है. खाली जो आपका लोन आपने जो लिया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट है, दैट इज ओनली द वन विच इज अलाउड. ठीक है, नेक्स्ट 8th पॉइंट, if the new loan or fresh loan is taken to pay back the whole loan, then interest on such new loan is also allowed as deduction. इसका मतलब वही आ गया आपका जो मैंने आपको इनिशियली समझाया था कि चाहे एक से ज्यादा लोन हो, हाउस लोन हो फॉर वन प्रॉपर्टी, सो इन केस आपने कोई ओरिजिनल लोन लिया हुआ था और उसको पे बैक करने के लिए आप एक और किसी से लोन ले लेते हो, तो दोनों का इंटरेस्ट यू कैन अलाउड एज deduction under this income from house property. Then 9th point is, if lender has charged some penalty for non-payment of loan or for late payment of loan, then such amount is not allowed as deduction. ये खाली इंटरेस्ट के केस पे है. अगर आप पेमेंट नहीं दे रहे हो टाइम से, तो कोई अगर चार्ज लगा रहा है आपका लेंडर या आपका सेलर, कोई भी पेनल्टी लगा रहा है, तो वो पेनल्टी आपकी अलाउड नहीं है. Only the interest on accrual basis is allowed as deduction from your NAV. ठीक है, टिल 9 पॉइंट. अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं 10th पॉइंट पे मूव करूंगी. एनी डाउट्स टिल 9th पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. Any doubts? Clear? The first slide of interest on क्या आदित्य? This is first slide. यहाँ पे ना वैसे होम लोन मेंशन है, बट आपका होम लोन चाहे पर्सनल लोन हो चाहे होम लोन हो, मैंने दोनों पॉइंट आपके डिस्कस करा दिए कि सच लोन शुड बी टेकन फॉर दिस. तो यहाँ पे वर्ड अभी होम लोन है, होम को हटा के आप खाली लोन भी कर सकते हो, बट सच लोन शुड बी यूज्ड फॉर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन गितेश इज फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%. ये हमेशा फिक्स्ड है आपकी. ठीक है, आपको बस दिमाग में रखना है कि दिस इज 30%. तो जो भी आपकी एनएवी आएगी उस पे आप सेक्शन 24A के अंडर डायरेक्ट 30% का डिडक्शन दे दोगे इन द इंटरेस्ट. एक सेकेंड रुको, मैं पहले गितेश वाला दिखा देती हूँ एक बारी. गितेश, दिस इज द फॉर्मेट. जो भी आपका जीएवी है उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड सब्ट्रैक्ट करके अपना एनएवी निकालोगे,
उसके बाद आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दोगे एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, जो भी आपका एनएवी होगा दैट शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ, अगर आपका प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे निल होता है, तो निल इंटू 30% इज निल ओनली। तो ये जब ही लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हेन यू हैव सम अमाउंट हियर, उसके बाद यू गेट अ 30% ऑफ दैट अमाउंट। तो दिस 30% इज ऑलवेज ऑफ एनएवी अमाउंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है आपका, यही मैंने बताया था कि इट इज फिक्स्ड। एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी हो आपके, डजंट मैटर, दीज आर ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड, this is fixed at 30%. Okay, now मैम next is the interest is also deductible for interest on one loan also. Point 3 क्या है आपका? हाँ मतलब ये तो, हाँ वन लोन का तो है ये अंडरस्टूड। इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने ज्यादा भी लिए हुए हैं तो उनका भी मिल जाएगा आपको डिडक्शन। आपकी मैक्सिमम सीलिंग जब मैं डिस्कस करूंगी जब आपको पता चल जाएगा। बट ये कह रहा है कि इफ यू हैव टेकन मोर देन वन हाउसिंग लोन फॉर जस्ट वन प्रॉपर्टी, तो उसका आप कंबाइन करके इंटरेस्ट जितना भी बन रहा है वो आप यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन अंडर दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप ले सकते हो उससे ज्यादा की डिडक्शन। सिमिलरली अगर आपके एक से ज्यादा हाउसेज है जिसपे आपने लोन लिया हुआ है, तो उन सारे हाउसेज का भी कंबाइन करके यू कैन क्लेम द डिडक्शन। Ma'am, if two people jointly own a HP but only one of them is paying off the loan, then how is that to be? बच्चे जॉइंट ओनरशिप ना मैं आपको बाद में कराऊंगी, उस टाइम हम ये कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, अभी सिंगल ओनर का चल रहा है। जॉइंट ओनरशिप, अनरियलाइज्ड रेंट, ये सारे कंसेप्ट आई विल टेक लेटर इन द चैप्टर। ओके, सो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे ये सब। ठीक है, सो टिल 9th पॉइंट एवरीवन इज क्लियर? चलो, सो 10th पॉइंट क्या कहता है? If loan is taken to purchase or to construct residential house property, this is just for purchase or construction। ठीक है, इस पे repairs या reconstruction नहीं है। अगर कोई लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, then on the repayment of such loan, interest will be allowed as deduction from NAV and the principal amount will be allowed as deduction under section 80C of your gross total income। इसका मतलब क्या है? अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी किसी प्रॉपर्टी को, सो अब जब रिपेमेंट करते हो आप इंटरेस्ट पे करते हो और कुछ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, राइट? तो जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो तो मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फ्रॉम योर एनएवी, राइट? बट प्रिंसिपल अमाउंट का क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आता है आपका अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, मैंने आपको इनिशियली बताया था ना, व्हेन आई शोन यू द प्रॉपर फॉर्मेट, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से आपकी डिडक्शंस होती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो मैं अभी हाउस प्रॉपर्टी करा रही हूँ इसलिए मैं आपको बस ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रही हूँ, उसके बाद हम डिडक्शंस एक प्रॉपर यूनिट है जो हम करेंगे। बट अभी आपको बस पता होना चाहिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपका अंडर सेक्शन 80C भी अलाउड होता है फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आप लोगों को याद होगी, इट इज द सम ऑफ योर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर इनकम सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स, राइट? ये 5 हेड होते हैं आपके। तो इनके बाद डिडक्शंस मिलती है, उस डिडक्शन में 80C में ये डिडक्शन मिल जाएगी। सो जस्ट लुक इनटू दिस पॉइंट, whatever EMI you are paying for the loan of residential property, and this is only in case of what? Purchase or construction। ठीक है, repairs और reconstruction नहीं है यहाँ पे वर्ड। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है this will be allowed as deduction under section 24B from NAV। ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 80C में से जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, चाहे लेंडर आपका कोई भी हो इन केस ऑफ इंटरेस्ट।
मैंने बताया था ना, चाहे आप पर्सनल लोन ले लो, बट अगर वो परचेज या कंस्ट्रक्शन या किसी के लिए भी है तो वो अलाउड होता है। तो यहाँ पे वो चारों के केस में इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। बट आपका एटीसी पर्सनल लोन अगर आपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लिया है उस पे नहीं देता। उसके अलावा चाहे आपका आपने बैंक से लिया हो, चाहे एम्प्लॉयर से लिया हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, वो एटीसी में आपको मिल जाता है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स ना जब आपका एटीसी आएगा मैं दोबारा डिस्कस कराऊंगी, बट सिंस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट हियर ऑल्सो। ठीक है, जब आपका पूरा यूनिट पूरा सिलेबस हो जाएगा तब भी आपके पास हमेशा हैंडी रहेगा। वेन एवर यू हैव इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इट मीन्स यू हैव टू मेक टू एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते टाइम 24B के अंडर आपको इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट करना है। जब सारी इनकम हेड्स हो जाएंगी, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसके बाद आपको एटीसी में से प्रिंसिपल अमाउंट भी डिडक्ट करना है। तो हमेशा आपके टू ट्रीटमेंट्स होंगे, हमेशा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के। ठीक है, सो लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स इज एन अकाउंटेंट and he is currently working in a company and getting salary of rupees 90,000 per month. ठीक है, so this is his salary income. He is also a part-time consultant and earning rupees 2 lakh per annum from it. So this is consultant है, so this is a profession, so this is his professional income. Professional income आती है आपकी पीजीबीपी में। ठीक है, तो आपकी सैलरी इनकम भी आ गई, आपकी पीजीबीपी भी इनकम आ गई। नेक्स्ट इज he had purchased a flat by taking a loan from Punjab National Bank and the flat is rent out at the rate of rupees 23,000 per month. So ये आपका actual rent हो गया। Municipal taxes paid are rupees 20,000. Expenses on repairs and maintenance are rupees 25,000. During the year, he has paid back rupees 2 lakh of loan, of which 1,25,000 rupees is the interest and rupees 75,000 as the principal amount. Now calculate his taxable income. So first we'll calculate his taxable income from house property. So I'm just giving you 1 minute time. Just read the question entirely, then I'll show you the solution. पढ़ लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। So let's do first the calculation of house property income. So आपका actual rent given है आपको 23,000 into 12. So this is 23,000 into 12, 2,76,000. And the flat is rent out. ये आपका actual rent है, sorry. आपका expected rent है ही नहीं इसमें, whatever your actual rent. So this is 23,000 into 12. So this is 2,76,000 which is equals to your GAV. ठीक है, आपका क्या फॉर्मेट कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर। सो इस केस में आपका ना तो म्युनिसिपल वैल्यू दी है, ना आपका फेयर रेंट है, ना आपका स्टैंडर्ड रेंट है। सो वट एवर एक्चुअल रेंट, दिस एक्चुअल रेंट इज इक्वल्स टू योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, काफी बार केसेस में आपके क्वेश्चंस में इट इज नॉट मेंशन स्पेसिफिकली, तो जो भी आपका एक्चुअल रेंट होगा दैट ओनली इज इक्वल्स टू योर जीएवी। ठीक है, सो आपकी जीएवी आ गई 2,76,000। देन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितने, 20,000। सो आपने 20,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड द बैलेंस इज योर एनएवी। ठीक है, 2,76,000 माइनस 20,000, 2,56,000 इज योर एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहती है अंडर सेक्शन 24 और ए, डायरेक्ट 30% ऑफ दिस अमाउंट डिडक्ट कर दो।
ठीक है, तो आपका कितना अमाउंट था, 2,56,000 इंटू 30%, सो दिस इज 76,800। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था, उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ही हैज पेड 2 लाख ऑफ लोन विच इंक्लूड्स 1,25,000 एज इंटरेस्ट। तो ये आपका 1,25,000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, ये भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपका नेट टैक्सेबल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी आया है 54,200। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने कर दिया 30% ऑफ एनएवी, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका आ गया टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, अब हमारा एटीसी का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। एटीसी क्या कहता है आपका, पहले हम 5 हेड्स में देखते हैं। तो सैलरी कितनी है आपकी, 90,000 पर मंथ। सो 90,000 इंटू 12 इज योर 10,80,000 पर एनम, उसकी सैलरी इनकम थी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम वी जस्ट हैव कैलकुलेटेड, दिस इज 54,200, so it is 54,200। पीजीबीपी वो कंसल्टिंग से 2 लाख रुपीस पर एनम कमा रहा था, so it is 2 लाख। कैपिटल गेन्स है नहीं, अदर सोर्सेज इनकम है नहीं, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम इन तीनों का सम हो जाएगा विच इज 13,34,200। उसके बाद आती है आपकी डिडक्शंस। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपका आता है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 2 लाख में से 1,25,000 इज योर इंटरेस्ट इनकम, बाकी बचा हुआ 75,000 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपकी टैक्सेबल इनकम नेट आ जाएगी, क्योंकि ये आपको इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन अलाउ कर दी गवर्नमेंट ने। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के 2 ट्रीटमेंट्स होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट विच विल बी done while calculating the income from house property, and the other, that is the principal amount, it will be given as deduction under section 80C from your gross total income. So in short, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, दोनों पे फायदा है। अगर के लिए लोन ले रहे हो बनाने के लिए चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए, आपके दोनों में फायदा है, आपकी इनकम कम हो जाएगी दोनों केस में। सो एनी डाउट? मैम डिडक्शन अंडर सेक्शन विल आल्सो बी अलाउड ऑन इनकम फ्रॉम हाउस। बेटा ये 80C तो ना आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मिलता है। जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है ना, उसके बाद आती है आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है, उसका एक डिफरेंट यूनिट है जो हम करेंगे, बहुत टाइप की डिडक्शंस होती हैं आपकी, तो ये सारी आपकी उस टाइम पे आएंगी। और जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसकी कैलकुलेशन में 80C नहीं आता, उसकी कैलकुलेशन 2 ही डिडक्शंस हैं, सेक्शन 24A एंड 24B। मैम एक्सपेंसेस एंड रिपेयर्स डिडक्शन, बेटा ये तो आपको करना ही नहीं है, दिस अमाउंट इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है ना 30% की, तो जो एक्चुअल है वो हमेशा आपको इग्नोर करनी है, एक्चुअल एक्सपेंसेस। गोविंद मैक्सिमम कैप फॉर डिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल इज, बेटा ये मैं बता दूंगी, वैसे 1.5 लाख ही है राइट नाउ 80C के अंदर। उन्होंने 2 लाख कर दिया बट 50,000 फॉर एनपीएस। तो जब डिडक्शंस करेंगे वो तब करेंगे, जिस बच्चे को आती है अच्छी बात है वो रिवाइज करते रहो, बट मैं अभी डिडक्शंस छेड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर यूनिट है और हर उस यूनिट में सारे डिडक्शंस की कैप हम करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको मैं कंसेप्ट क्लैरिटी दे रही हूँ कि किस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, सो अभी मैक्सिमम कैप्स मत जाओ जब तक मैं ना कराऊं उन्हें। एंड वन मोर थिंग, in the last class we discussed about the 2 self-occupied house property, right? So I have got the book and it is confirmed that up to 2 self-occupied property आप लोगों को आप लोग NAV को नील कर सकते हो आपकी। जैसे मैंने कंसेप्ट कराया था ना, इन केस यू हैव 4 हाउस प्रॉपर्टीज, तो आप किसी भी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लोगे और 2 को डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, तो आज मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, उस पीडीएफ में यू विल गेट द अपडेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सो आई एम कंफर्मिंग इट राइट नाउ, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 इट इज नाउ अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1920, सॉरी 1920 से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड पे अलाउड है।
ठीक है, क्लियर सो फार. नेक्स्ट थिंग विच आई एम कमिंग अप इज इन 11th पॉइंट. और ये जो 11th पॉइंट है ना, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट in terms of understanding the pre-construction period, जो बहुत ही important है आपके examination point of view से. So पहले 11th point करते हैं, फिर 12th पर आएंगे. It is very much big one, तो हम probably we have to shift this to next class also, but अभी जितना कर सकते हैं उतना we just try to do it. ठीक है. So 11th point में क्या है? If loan is taken फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. देख लो यहाँ पे टर्म कंस्ट्रक्शन है, ना परचेज है, ना रिपेयर्स है, ना रिनोवेशन है. दिस इज कंस्ट्रक्शन. सो इफ लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी and the construction gets completed within the year in which the loan is taken, then the interest on loan is fully allowed as deduction and it is not allowed to be amortized. इसका मतलब है आपने जिस साल में कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था अपनी प्रॉपर्टी की, उसी साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई. सो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर इज 1920, उसी में आपने लोन लिया, उसी में आपकी हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी हो गई है, देन इन दिस केस जो भी आपका इंटरेस्ट है इट इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन. वो अमोर्टाइज नहीं होगा. ठीक है, अमोर्टाइज क्या होता है? आप इक्वल नंबर में आप इसको सब्सिक्वेंट ईयर्स पे अमोर्टाइज कर देते हो कि इतना इतने साल मिलेगा, इतना इतने साल मिलेगा, इतना इतने साल मिलेगा. तो ये कंसेप्ट नहीं आता. ये अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी कंसेप्ट कब आता है. अभी बस अपने दिमाग में ये रखना कि जब भी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कुछ होम लोन ले रहे हो और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, तो व्हाटएवर interest you have to pay on that particular amount of loan, that will be allowed as deduction. ठीक है, वो amortize का केस नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल Mr. X has taken a loan of rupees 4 lakh at the rate of 10% per annum for constructing a house on April 10, 2019. So he has taken a loan on April 10, 2019. ठीक है, ये किस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है? 1920 में. ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 19 से शुरू होता है, तो 1920 में उसने लोन ले लिया और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 30th November 2019. तो उसी साल, उसी फाइनेंशियल ईयर में 1920 में ही कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गई. Thereafter the house is self occupied by Mr. X. उसके बाद क्या था? मिस्टर एक्स ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है. ये लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है, उसने अपने खुद के रहने के लिए घर बनाया. He has incurred rupees 20,000 on repairs and maintenance. ये तो वैसे भी हमारा इग्नोर होता है. Calculate his income from house property assuming that the municipal taxes paid are rupees 18,000 for the financial year 1920. अब पहली बात तो ये है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सेल्फ ऑक्यूपाइड में ना तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ना ही आपको म्युनिसिपल टैक्सेस जो आप पे करते हो वो अलाउड होते हैं. सो इन दिस केस योर GAV इज नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आर नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. NAV भी नील है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील है. आप क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का. अब केस आता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. अब वो क्या कह रहा है? उसने लोन लिया है 4 लाख का कब? अप्रैल 10, 2019. अभी उसने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है. उसने ये नहीं बताया है कि पेमेंट कब करी है, पूरी कितने साल का लोन लिया है. ठीक है, उसने बस ये बोला कि अप्रैल 10 को उसने लोन. तो अब अगर मेरे को इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का, सिंस द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन योर फाइनेंशियल ईयर ओनली, दैट इज 1920, जब कंस्ट्रक्शन करी, लोन लिया, दोनों एक ही साल में हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका पूरा जो भी इंटरेस्ट बनता है साल का, वो पूरा का पूरा इसी साल अलाउड हो जाएगा. आपको फ्यूचर ईयर्स में उसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है. तो इस केस में अगर आप देखो तो शुरुआत के जो 9 दिन थे ना, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th and 9th, सिर्फ यही कुछ 9 दिन हैं जो आपके पूरे साल में नहीं आ रहे. उसके अलावा पूरे जो आपका लोन था वो पूरे साल चला है आपका. ठीक है, कमिंग ईयर्स में भी, नेक्स्ट ईयर्स में भी चला है वो, बट वो अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि हमें खाली फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, सब्सिक्वेंट ईयर्स का नहीं करना है अभी. तो 1920 का
जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर ऑफ डेज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स. सो ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी कैलकुलेटेड एज पर द नंबर ऑफ डेज. तो आपके नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने होते हैं? 366. और वैसे कितने होते हैं? 365. ये चीज हमेशा याद रखना. आपका इसमें फाइनेंशियल ईयर पड़ रहा है 1920 एंड 20 इज अ लीप ईयर. तो फेब्रुअरी में कितने दिन होंगे? 29. सो दिस विल बी डिवाइडेड विथ 366 डेज. तो आपका कैसे बनेगा? 4 लाख इंटू 10%, क्योंकि 10% पर एनम है, इंटू नंबर ऑफ डेज. सो 366 में से 9 डेज माइनस कर लो, क्योंकि सिर्फ 9 दिन का छोड़ के 10 अप्रैल से तो लोन ले ही लिया था. सो 357 डिवाइड बाय 366. सो ये आपका जब आप करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 39,014. And for your reference, I have also mentioned here that while calculating the interest, जो भी आपकी date of borrowing होगी that will be included and the date of repayment of loan is excluded. So in this case, the person is taking the loan on 10th April, इसलिए मैंने 10th को include कर 10 days डिडक्ट करें. गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ इसलिए 9 दिन सब्ट्रैक्ट करिए, बाकी तो पूरे साल लोन चल ही रहा था उसका, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन. क्लियर है सबको ये? एनी डाउट्स? जल्दी बताओ, क्योंकि इसके बाद आई विल बी कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मैम इसमें रिफंड होगा फिर इस केस में? जल्दी बताओ. ठीक है, ये इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है? इन केस द लोन एंड द कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. मैम योर स्पीकर इज ऑफ. नहीं बच्चे, माई स्पीकर इज ऑन. मैं म्यूट नहीं हूं, अनम्यूटेड हूं मैं. House property is only a one part of the 5 heads, right? So ma'am, in this case will the amount be refunded? बेटा रिफंडेड क्यों है वर्ड? रिफंडेड कहाँ से आ गया? ये तो आपको आपकी टैक्सेबल इनकम को ही कम कर रहा है, तो आप तो पे करोगे ना जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी. उसके बाद आप पेमेंट करते हो ना टैक्स की, तो रिफंड कहाँ से आ गया? ये तो डिडक्शन है. आपको पहले जो आपकी इनकम बन रही थी उसमें से रिड्यूस कर दिया वो अमाउंट, आपको डिडक्शन दे दी कि आप इतना अमाउंट डिडक्ट करके हमें नेट पेमेंट कर दो. तो इसलिए जो आपका टैक्सेबल इनकम है, दिस इज अ लॉस इन दिस केस. 39,016 इट इज अ लॉस. तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम जितना भी बनेगा उसमें से ये लॉस आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. रिफंड थोड़ी आता है. रिफंड तो तब आएगा जब आपने कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया है गवर्नमेंट को, तब गवर्नमेंट आपको रिफंड दे रही है. अगर आपने एक्स्ट्रा, इसमें तो एक्स्ट्रा पे का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा. इसमें तो गवर्नमेंट पहले ही कह रही है कि डिडक्ट कर. क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले. मैं थोड़ा सा इसको बस टच कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. अभी इससे इनिशियल वाले में हमने क्या समझा था? व्हेन द लोन इज एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. इस केस में क्या है? लोन पहले ले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में हुई है. ठीक है, जैसे आपके बिल्डर्स होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो ये 2-3 साल में कंस्ट्रक्शन होती है इनकी. तो आपने लोन पहले ले रखा है, कंस्ट्रक्शन बाद में हो रही है, तो उस केस में आपका कंसेप्ट आता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अच्छे से कर लेना इस कंसेप्ट को, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में दिस इज द ओनली कंसेप्ट विच रिक्वायर्स योर माइंड, जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है. इसके अलावा सारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप आराम से कर लोगे. बस एक यही है जिसमें आपका एक्चुअल में दिमाग लगता है. ठीक है, सो आई एम जस्ट रीडिंग वट एवर रिटर्न इन बुक. इसके बाद मैं आपको सिंपलर लैंग्वेज में समझाऊंगी.
So first is interest payable by an